سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسموک کی۔ شہر کو اسموک زدہ بنانے میں گاڑیوں کا بڑا عمل دخل۔ شہر کے 7 ناکوں سے روزانہ اوسطاً 7 لاکھ کے قریب گاڑیوں کی آمد و رفت۔ داخلی راستوں پر بڑی گاڑیوں کا دھواں چیک کرنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام موجود نہیں۔ باغوں کے شہر کو اسموک زدہ بنانے میں گاڑیوں کا بڑا حصہ ٹھوکر نیاز بیگ، شادرہ، بابو سابو، سگیاں، فیروز پور روڈ سمیت 7 داخلی و خارجی راستے موجود۔ اعداد و شمار کے مطابق شہر کے 7 ناکوں سے روزانہ اوسطاً 7 لاکھ کے قریب گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے، جن میں ٹرک، ٹرالیز، ٹریکٹر ٹرالیاں اور بسیں شامل ہیں۔ روزانہ ڈیزل پر چلنے والی 2 لاکھ بڑی گاڑیوں کا دھواں بھی اسموک میں اضافے کا سبب ہے۔ داخلی راستوں پر بڑی گاڑیوں کا دھواں چیک کا خاطر خواہ انتظام موجود نہیں۔ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے اسموک کے تدارک کے لیے اقدامات جاری ہیں، تاہم دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی مزید سخت چیکنگ اشد ضروری ہے۔ ماہر ماحولیات ڈاکٹر حبیب الحق رندھاوا کا کہنا ہے کہ لاہور کے باسیوں کو چاہیے کہ شہر پر اسموک کا زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ بہت ساری گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے فیول اور دوسرا ان کی ورکنگ جو ہے بڑی خراب ہے، لیکن ان کو چیکنگ کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو جو داخلی راستے ہیں وہاں چیک کریں، اور رات کے وقت خاص طور پر زیادہ تر جو گاڑیاں جن کی امیشن خراب ہے وہ رات کے وقت جو تعمیراتی سامان لے کے باہر سے سرگودا سے دوسرے اضلاع سے آتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کو چیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بے شک انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اگر سٹاف بہت کم ہے تو اس کو چیکنگ کرنے کے لیے سٹاف کو آپ آؤٹ سورس کر دیں، آپ پرائیویٹ کنسلٹنٹس کو دے دیں اور ان پر سختی کریں کہ آپ نے سختی کے ساتھ چیکنگ کرنی ہے۔ ماہر ماحولیات ڈاکٹر حبیب الحق رندھاوا نے مزید کہا کہ تمام اداروں کو چاہیے کہ اسموک کے تدارک کے لیے متحرک رہیں۔ اگر متعلقہ ادارے مل کر کام کریں گے تو اسموک پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تجارتی سرگرمیاں رات 10 بجے تک بند کروانے کی ہدایت کر دی۔ 2 روز گھر سے کام کرنے کی ہدایت جاری۔ عدالت نے درخواستوں پر تحریری حکم جاری کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ سی سی پی او لاہور رات 10 بجے تجارتی سرگرمیاں بند کروانے کے حکم پر عمل درآمد کروائیں۔ اسموک کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے سیکریٹری سی سی پی او لاہور کو اقدامات کرنے کی بھی ہدایات دیں۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ لاہور اور حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ نجی اداروں اور بینکوں سمیت ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ آلودگی کے باعث ڈی سیل ہونے والے صنعتی یونٹس کو دوبارہ سیل کیا جائے۔ آئندہ سماعت پر فیکٹری کو سربمہر کرنے کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالتی حکم کے باوجود صنعتی یونٹس کو ڈی سیل کرنے والے محکمہ ماحولیات کے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم۔ عدالت نے گرین بیلٹ پر پارکنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے اور گرین بیلٹ کو نقصان پہنچانے والے فارم ہاؤسز گرانے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ اسموک کے تدارک کے لیے مصنوعی بارش ماہرین کی رائے سے مشروط ہوگی۔ بغیر پارکنگ کمرشل عمارتوں کے مالکان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے اجلاس میں کہا ہے کہ اسموک پر قابو پانے کے لیے مصنوعی بارش ماہرین کی رائے سے مشروط ہوگی۔ بغیر پارکنگ کمرشل بلڈنگز اور پارکنگ سائٹس میں تجاوزات کے خلاف ٹیپا اور ایم سی ایل بھرپور کارروائی کریں گے۔ جو بلڈنگز ٹاؤن پلاننگ ونگ آف ایل ڈی اے نے پارکنگ اپنے بیسمنٹ میں کہیں پہ چھوڑی ہے اور اس کی جگہ اس نے کوئی کمرشل ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہے، اب ہم نے ٹیپا کو دیا ہے، کیونکہ ٹیپا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ٹیپا اس کو انفورس کر کے انفورسمنٹ کے لیے ہم نے ایل ڈی اے اور ٹیپا ٹاؤن پلاننگ ونگ تھرو انفورسمنٹ ونگ ان سب کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ یہ اب وزٹس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے انفورسمنٹ سٹارٹ کر۔ کمشنر لاہور نے ہدایت کی کہ بغیر پارکنگ کمرشل بلڈنگز کے مالکان کو پہلا نوٹس موصول کرایا جائے، دوسرے نوٹس پر مالکان کو جرمانے ہوں گے، تیسرے نوٹس پر عمارت سیل ہوگی۔ پلازے کی تعمیر کے دوران سڑک خرابی کی ذمہ داری پلازے پر عائد ہوگی۔ نوٹسز پر عمل درآمد نہ ہونے پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اجلاس میں ڈی سی لاہور رافعہ حیدر، ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف اور ایم ڈی واسا غفران احمد سمیت دیگر افسر بھی شریک تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ حکومتی اقدامات بے سود۔ شہر میں اسموک کی صورتحال میں کوئی بہتری نہ لائی جا سکی۔ اسموک سے پھیلتی بیماریوں کے پیش نظر شہریوں کے لیے ماسک کا استعمال ضروری قرار۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بھی بارش کا کوئی امکان نہیں۔ اسموک کی مزید صورتحال جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے، جو اس وقت وفاقی کالونی میں موجود ہیں۔ جی مبین، بتائیے۔
بالکل اسی طرح صورتحال ہے. اگر ہم بات کرتے چلے لاہور کے موسم کی تو موسم میں ہمیں اسی طرح اسموگ کی شرح میں اضافہ نظر آتا ہے. روز کی بنیاد پر اسموگ کی صورتحال جو ہے بد سے بدترین کی طرف گامزن ہے. حکومتی اقدامات کے باوجود بھی ہمیں اسموگ کی شرح کے اندر کوئی خاطر خواہ کمی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اسموگ کی ریشو روز کی بنیاد پر ہمیں اس میں اضافہ ہی نظر آ رہا ہے. آج بھی اسموگ کی جو اوسط ایئر کوالٹی کی انڈیکس ہے شہر لاہور کے اندر وہ اوسط 433 ریکارڈ کی گئی ہے, جو کہ ابھی بھی خطرناک حد تک شہر کے اندر موجود ہے. اس کے لیے محکمہ موسمیات والوں کا کہنا تھا کہ اتنی خطرناک حد تک ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ خاص طور پر ماسک کا استعمال یقینی بنائیں, پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں, اور جو موٹر سائیکل پہ سفر کرنے والے افراد ہیں چشمے کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ اسموگ کے مضر اثرات اس سے محفوظ رہ سکیں, کیونکہ سانس کی اور پھیپھڑوں کی بیماریاں بہت تیزی سے جنم لے رہی ہیں اسموگ کی وجہ سے. روز کی بنیاد پر جو ہے سینکڑوں شہری بھی ہسپتال منتقل کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ حکومت نے بھی کافی اقدامات اٹھائے ہیں. ہفتے کے اندر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا بھی جو ہے نفاذ کیا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے اسموگ کی شرح میں کمی نہیں آ رہی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹریفک کی اگر بات کرتے چلے تو روز کی بنیاد پر ہزارہا جو ہے ہیوی وہیکلز جو ہیں جو اسموکی وہیکلز ہیں ان کے بھی چلان کیے جا رہے ہیں, چلان ٹکٹس ایشو کیے جا رہے ہیں, گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں. لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود بھی ہمیں اسموگ کی شرح کے اندر کی خاطر خواہ کمی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اسموگ کی شرح اسی طرح روز کی بنیاد پر ہمیں اوپر جاتی دکھائی دے رہی ہے. اگر ہم بات کرتے چلیں بارش کی تو بارش کے ابھی تک کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے. محکمہ موسمیات والوں کا کہنا تھا کہ آئندہ 10 روز تک بھی جو ہے بارش کے امکانات نہیں ہے, جس کی وجہ سے اسموگ کی شرح کے اندر کمی کی متوقع نہیں کی جا رہی. تو اب دیکھنا ہی ہے کہ تک اسموگ کے اندر کمی نہیں ہوتی, شہریوں کے اوپر ہی ذمہ داری لاحق ہوتی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, ماسک کے استعمال یقینی بنائیں, پانی کے انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں, چشمے کا استعمال کریں, بزرگ اور بچے جو ہیں بلا ضرورت سفر سے گریز کریں تاکہ اسموگ کے جو مضر اثرات ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں. شکریہ مبین. لاہور میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات جاری. پولیس نے رواں سال فضائی آلودگی کے ذمہ دار 482 عناصر کو گرفتار کر کے 590 مقدمہ درج کیے. کارپوریشن LWMC کی جانب سے روزانہ سڑکوں کی صفائی اور دھلائی جاری ہے. مزید اس رپورٹ میں. پولیس اسموگ کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف متحرک ہے. CCPO بلال صدیق کمیانہ نے کہا رواں سال فضائی آلودگی کے ذمہ دار 482 عناصر کو گرفتار کر کے 590 مقدمات درج کیے گئے. اسموگ کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا. اسموگ کی روک تھام کے لیے LWMC کے اقدامات بھی جاری ہیں. شہر کی 100 کلومیٹر سے لمبی سڑکوں کی روزانہ صفائی اور دھلائی, 300 کلومیٹر سے لمبی روڈز پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے. سگیاں روڈ, تاج کمپنی روڈ, شاہدرہ چوک, ٹرک اڈا, لاری اڈا میں صفائی ٹیمیں تعینات ہیں. CEO LWMC بابر صاحب الدین نے کہا اسموگ کے پیش نظر تمام روڈز کو ڈسٹ فری بنایا جا رہا ہے. برائلر اور انڈوں کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر. مرغی کا گوشت 4 روپے مہنگا, فی کلو قیمت 484 روپے ہو گئی. زندہ برائلر کے دام بھی 3 روپے فی کلو بڑھ گئے. زندہ برائلر ہول سیل 322, پرچون ریٹ 334 روپے کلو مقرر. فارمی انڈے 1 روپے مہنگے, فی درجن قیمت 333 روپے ہو گئی. مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9870 روپے میں فروخت. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے. جی عبدالقادر, آگاہ کیجیے. آج بالکل پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سپلائی جو ہے متاثر کی گئی ہے تاکہ قیمتیں جو ہیں بڑھائی جا سکے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ پیدا کر کے برائلر کی قیمتوں میں 4 روپے تک کا اضافہ کیا گیا. برائلر گوشت کی قیمت گزشتہ روز 480 روپے فی کلو تھی, آج 4 روپے اضافے کے بعد 484 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی. اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 3 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. ہول سیل زندہ برائلر 322, جبکہ پرچون زندہ برائلر 334 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے. انڈوں کی قیمتوں میں آج ایک بار پھر اضافہ ہوا. گزشتہ روز بھی اضافہ کیا گیا تھا, آج مزید 1 روپے کا اضافہ کر دیا گیا اور 332 سے قیمت بڑھا کر 333 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے. ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9870 روپے کی مقرر کی گئی ہے, جبکہ پرچون مارکیٹوں میں انڈے بدستور 340 سے 350 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ موسم کی شدت جیسے بڑھتی جا رہی ہے اور سردی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے تو انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور انتظامیہ ماسوائے سرکاری محکموں کے اجرا کے قیمتیں کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے ایک عام صارف جو ہے وہ پولٹری مصنوعات سے بھی محروم ہوتا جا رہا ہے. جی شکریہ عبدالقادر. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی. نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرستیں تیار کر لی گئیں. پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 297 نشستیں ہوں گی. الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کی حتمی فہرستیں 30 نومبر کو جاری کرے گا.
8 फरवरी को आम इंतखाबात कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन के जराये ने बताया कि आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, जिसके मुताबिक आइंदा इलेक्शन में पंजाब में कौमी असम्बली की 141 जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तें 297 होंगी। जराये के मुताबिक लाहौर से कौमी असम्बली की NA 117 से NA 130 तक कुल 14 नशिस्तें होंगी। सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें PP 144 से PP 173 तक होंगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा। मुस्लिम लीग नून का अवामी महाज से पहले खारजा महाज संभालने का फैसला। शहबाज शरीफ की क़यादत में पार्टी का हम 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन में अवाम 2/3 अक्सरियत दें, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की भी कमर तोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून का अवामी महाज से पहले खारजा महाज संभालने का फैसला। नवाज शरीफ की अमरीका और बरतानिया समेत अहम ममालिक के सफरा से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ भी मुतहर्रिक। पार्टी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का अहम वफद 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएगा। शहबाज शरीफ चीन में अहम कम्युनिस्ट रहनुमाओं और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। लीगी वफद दिसंबर के पहले हफ्ते में चीन के दौरे पर जाएगा। लीगी क़यादत मुल्क में सरमायाकारी लाने और चीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए खारजा महाज को तरजीह दे रही। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली की भी मुलाकात, तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू की गई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। अल्लाह ताला के फजल और अवाम के एतमाद से इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। अवाम नून लीग को 2/3 अक्सरियत दें, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की भी कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में अली परवेज मलिक, राना कासिम नून, डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी और सलमान खान शामिल थे। नौजवानों को मुतहर्रिक करने के लिए मरीम नवाज की MSF मिलिट्री विंग के अहदेदारान से मुलाकातें। इजलास में मरीम नवाज का कहना था कि कायद नवाज शरीफ चाहते हैं कि नौजवान आम इंतखाबात में सियासी सरगर्मियों का हरावल दस्ता बने। नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन और मिनॉरिटी विंग के अहदेदारों की शिरकत। आम इंतखाबात के हवाले से MSF और मिनॉरिटी विंग की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। विफाक समेत 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि नौजवानों और अकलियतों को सियासत की अवलीन सफ़ों में लाना चाहते हैं। नौजवान मुल्क का सरमाया है, उनकी तरक्की मुल्क की तरक्की है। मुल्क भर से नौजवानों को सियासत में शमूलियत का मौका मिलेगा। 2024 पाकिस्तान और अवाम के लिए नई उम्मीद, तरक्की का नया दौर लेकर आ रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का तेज रफ्तार दौर शुरू होगा। इंतखाबी सरगर्मियों में अकलियतों के फाल किरदार से जमहूरी कल्चर मजीद मजबूत होगा। MSF और मिनॉरिटी विंग के अहदेदारों का कहना था कि पार्टी के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान की तरक्की के मिशन में नवाज शरीफ के सिपाही बनकर काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून अपने इंतखाबी मंशूर का जल्द ऐलान करेगी। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मंशूर में महंगाई कम करने, आवाम को रिलीफ देने और गवर्नेंस में बेहतरी पर तवज्जो दी गई है। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर का ऐलान जल्द किया जाएगा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मंशूर तमाम तबकों और माहिरीन की मुशावरत से तैयार किया गया, जिसमें महंगाई कम करने, आवाम को रिलीफ देने पर फोकस किया गया है। गवर्नेंस में बेहतरी, आईनी इस्लाहात और कौमी दफा को मजीद मजबूत करने की सिफारिशात शामिल हैं। मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना है कि मंशूर में वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, आबादी पर कंट्रोल, सेहत और खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सकाफत और सियाहत पर मुश्तमिल जामिया गाइडलाइन दी गई है। नौजवानों को तालीम, रोजगार के मौके और लैपटॉप्स की फराहमी के लिए सिफारिशात भी शामिल हैं। मरियम औरंगज़ेब का कहना था मुस्लिम लीग नून ने हमेशा वादे पूरे किए, माजी की तरह आइंदा भी हम लोगों की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त जहांगीर तरीन से जर्मन सफ़ीर अल्फ्रेड गन्नास ने मुलाकात की। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जर्मन सफ़ीर की जहांगीर तरीन से मुलाकात IPP के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में हुई। मुलाकात में सीनियर रहनुमा इसहाक खाकवानी और फर्स्ट सेक्रेटरी मिस बज़ेल की मौजूदगी थी। अल्फ्रेड गन्नास और जहांगीर तरीन ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर और आइंदा आम इंतखाबात पर बातचीत की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की जानिब से तकरीब का एहतमाम। चीन की कौंसल जनरल ज़ाओ शरी की ख़ुसूसी शिरकत। चीन कौंसलेट की जानिब से 12 टॉपर्स और मुस्तहिक तलबा में 5 लाख रुपए के वज़ाइफ तकसीम किए गए। सामिया सईद की रिपोर्ट।
यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के शोबा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के ज़ेर एहतमाम तकरीब कौंसल जनरल चाइना जाओ शीरी ने खुसूसी शिरकत करके तलबा की हौसला अफजाई की। शोबा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के डीन डॉक्टर खालिद मंजूर समेत फैकल्टी, अरकान और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। कौंसलेट की जानिब से 12 टॉपर्स और मुस्तहिक तलबा में 5 लाख रुपए के वज़ाइफ तकसीम किए गए। पाक चीन ताल्लुकात और दोस्ती को उजागर करने के लिए तलबा और तालिबात को डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कौंसल जनरल चाइना का तकरीब से खिताब में कहना था, बेहद खुशी हो रही है कि मुझे दूसरी मर्तबा इस इदारे में आने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को आइंदा साल 10 लाख रुपए के वज़ाइफ दिए जाएंगे। I'm more than happy to announce that we will continue to do this program when 2024 comes, and we will continue to do this program for UCP. I'm happy to say that starting from 2024, we will increase the amount from the current $500,000 to $1 million. यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब शोबा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के डीन डॉक्टर खालिद मंजूर का कहना था, स्कॉलरशिप्स बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं ताकि बच्चे मेहनत और लगन से काम कर सकें। यूसीपी इस अज़म का इरादा रखती है कि चीन की यूनिवर्सिटियों के साथ मुस्तकबिल में मजीद MOUs पर दस्तखत किए जाएं। It was a great help and it was a great source of motivation among the students, and I hope students of humanities and social sciences would do and work more hard to get such scholarship and what the Excellency has announced today, and I'm very pleased that he has announced that he has doubled the amount for next year and after that. तलबा और तालिबात का इस मौका पर कहना था, स्कॉलरशिप्स हासिल करके बेहद खुशी हो रही है, मुस्तकबिल में मजीद मेहनत करेंगे। इस तरह की स्कॉलरशिप्स और अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में भी देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो मजीद डेडिकेटेड और लगन के साथ होकर अपनी फील्ड को भी सीरियस लें और अपने फ्यूचर के लिए और अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ बढ़ें। It's a great feeling. I would like to thank UCP and Dean of our faculty, Dr. Khalid Manzoor Bhatt, and Chinese Council for giving us this opportunity. It's not just about money. ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है, इनकरेजमेंट, जिस तरह से अप्रिसिएशन हमें दी जाती है, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे भी स्टूडेंट्स को मज़ीद मोटिवेट करने के लिए। तकरीब में हेड ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट डॉक्टर वहीद अहमद खान, हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर शाजिया, हेड ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर अरसलान और प्रो रेक्टर डॉक्टर हादिया अवान ने खुसूसी शिरकत की। महंगाई माफिया का राज, अवाम परेशान। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियां और 3 फल मजीद महंगे। लहसुन 800, अदरक 750, प्याज 170 और टमाटर 160 रुपये किलो बिकने लगे। मटर 320, शिमला मिर्च 180, अरवी 160, मेथी 140 और आलू 130 रुपये किलो फ़रोख्त। अंगूर 500, सेब 350, जापानी फल 280, अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तयाब। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई उसमें 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। लहसुन चाइना 5 रुपया महंगा करके 605 रुपये सरकारी रिलीज में मुकर किया गया, लेकिन मार्केट में 800 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह सब्ज मिर्च की कीमत में 15 रुपये का इजाफा किया गया, 85 रुपये सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह लीमू 3 रुपये महंगा करके 48 रुपये मुकर किया गया, तो 70 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। लीची 5 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये में कर की गया, लेकिन मार्केट में 140 से 150 रुपये फी किलो तक की जा रही। करेले 5 रुपये महंगे करके 90 रुपये में कर किए गए। पालक 3 रुपये इजाफे के बाद 45 रुपये लेकिन कर किए गए, लेकिन 70 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। फूल गोभी 7 रुपये महंगे करके 60 रुपये आज में कर किए गए, लेकिन मार्केट में 80 से 90 रुपये फी किलो तक की जा रही। शलगम 3 रुपये महंगा करके 63 रुपये में कर किया गया, मार्केट में 100 रुपये फी किलो तक शलगम की ग्रोथ की जा रही है। मटर 15 रुपये महंगे करके 195 रुपये में कर किए गए, लेकिन मटर मार्केट में 330 से 340 रुपये फी किलो तक ग्रोथ किया जा रहा है। गाजर देखी 5 रुपये महंगी करके 70 रुपये में कर की गई है, मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक ग्रोथ की जा रही है। 3 फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिनमें सेब काला फूलू 5 रुपये इजाफे के बाद 270 रुपये में कर किया गया, लेकिन मार्केट में फी किलो तक ग्रोथ किया जा रहा है। केला कंजावल 5 रुपये इजाफे के बाद 125 रुपये में कर किया गया, लेकिन मार्केट में 60 रुपये फी किलो तक कंजावल का केला फरोख्त किया जा रहा है। तरह जापानी फल 5 रुपये महंगा करके 165 रुपये में कर किया गया, लेकिन मार्केट में जापानी फल की ग्रोथ 280 से 300 रुपये फी किलो तक की जा रही। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियाँ और फल जो है वो सरकारी महकमे में महंगे दामों शहरियों को फरोख्त की जा रही है। जी।
शुक्रिया अब्दुल कादिर। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का गंगाराम हॉस्पिटल का दौरा, एमरजेंसी वार्ड और रिवैम्पिंग के तामीराती कामों का जायज़ा लिया है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम ने रात के गंगाराम हॉस्पिटल का दौरा किया। वज़ीर सेहत का रिवैम्पिंग मनसूबे पर सुस्त रवि और एमरजेंसी में अद्वियात की किल्लत पर इज़हार बरहमी। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि एमरजेंसी में मरीज़ों को कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबाई काबीना के अरकान का चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा, वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और मुशीर खेल वहाब रियाज ने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया है। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और मुशीर खेल वहाब रियाज ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जारी तामीराती काम का मुआयना किया। आमिर मीर की कॉन्ट्रैक्टर को तामीराती काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि अस्पताल का तामीराती काम 3 शिफ्टों में जारी है। 200 से ज़ायद मजदूर काम कर रहे हैं। अस्पताल के तामीराती मनसूबों की डेडलाइन 31 जनवरी 2024 मुकर्रर है। अस्पताल की तामीर में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कम उम्र ड्राइवर्स का नाम मुजरिमाना रिकॉर्ड में शामिल करने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने CTO लाहौर से 5 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दरख्वास्त पर समाअत की। शहरी आज़म भट्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस कम उम्र बच्चों का नाम मुजरिमाना रिकॉर्ड में शामिल कर रही है, जबकि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर ने अदालत में बयान दिया था कि कम उम्र ड्राइवर्स का नाम मुजरिमाना रिकॉर्ड में शामिल नहीं होगा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चों के अभी शिनाख्ती कार्ड बने नहीं, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है। कम उम्र ड्राइवर्स के नाम को क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल न किया जाए। जिन बच्चों को CRO में शामिल किया गया उसे खारिज किया जाए। अदालत ने कम उम्र ड्राइवर्स का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल करने पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर और SSP इन्वेस्टिगेशन से 5 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। कम उम्र बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड का मामला, पुलिस कई मासूम बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बना चुकी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर में 14 रोज़ में 5000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके। कम उम्र बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके CRO रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी है। FIR दर्ज होने के बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस बनाना लाजिम है। पुलिस ज़राए के मुताबिक किसी भी FIR में शामिल मुलजिम के फिंगरप्रिंट लिए बगैर सिस्टम चालान को अपलोड नहीं करता। पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 7353 मुकदमा दर्ज हुए। पंजाब पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में गुज़श्ता 14 रोज में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 5085 मुकदमा दर्ज हो चुके। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ 9 रोज में 4448 मुकदमात का इंदराज हो चुका। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज का कहना है कि मुकदमे के अंदराज के बाद CRO रिकॉर्ड बनाना लाजिम है। हाई कोर्ट हुक्म करेगी तो कम उम्र बच्चों का रिकॉर्ड खत्म किया जा सकता है। FIR के इंदराज का खौफ, शहर के मुख्तलिफ पुलिस खिदमत मराकज़ में लाइसेंस बनाने वालों का रश। पुलिस खिदमत मराकज़ बाबर टाउन में भी शहरियों का तांता बन गया। बैठने के लिए कुर्सियों का इंतज़ाम शहरियों को काफ़ी भी पेश की गई। क्रिमिनल रिकॉर्ड से बचने के लिए शहरियों में लाइसेंस बनवाने का रुझान बढ़ने लगा। शहर के मुख्तलिफ पुलिस खिदमत मराकज़ में लाइसेंस बनाने वालों का रश है। वाबड़ा टाउन पुलिस खिदमत मरकज में रश बरकरार, ताहम इंतजार के लिए इंतजामात भी किए गए हैं। वाबड़ा टाउन पुलिस खिदमत मरकज में 2 पुलिस मोबाइल्स भी तैनात हैं। इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज वाबड़ा टाउन इफरा सईद का कहना है कि रश ज्यादा होने के बाइस वक्त लग रहा, लेकिन यहाँ आवाम की सहूलत के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं और इन्हें कॉफी भी पिलाई जा रही है। हम लोगों ने इनके एंटरटेनमेंट के लिए इतना फैसिलिटेट किया हुआ है, चेयर्स लगवाई हुई हैं और साथ में कॉफ़ी मेकर हमारे पास मौजूद है। तो इनको वो जो टाइम वेट करना पड़ता है तो वो इन पे बर्डनाइज नहीं होता। ये बड़ी हंसी खुशी से जो हमारे साथ ताउन करके गुजार लेते हैं। मर्द हजरात लाइसेंस बनवाने में वक्त लगने का शिकवा करते नजर आते हैं, जबकि ख्वातीन बगैर लाइन के आसानी से लाइसेंस बनने पर खुश दिखाई दी। मैं अभी आई हूँ तो अभी से मैंने आई हूँ तो टोकन मिल गया, उसके बाद अभी ये प्रोसेस है इनका। सुबह 6 बजे का यहाँ पे आया हूँ और मुश्किलात डिफ़िकल्टीज ये आ रही हैं, कभी इनका सिस्टम स्टक हो जाता है, कभी टाइमली इशू होता है। अगर फिर कहते हैं कि आप बैठो बाहर और कुछ देर बाद आ जाते हैं, आप फिर बाहर आ जाओ, अभी स्लिप्स नहीं मिल रही। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 15 रोज में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 5485 मुकदमा दर्ज किए गए। बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली शुरू। आइंदा बरस 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। 15 बैंक आज़मीन हज से दरखास्तें वसूल कर रहे हैं। 15 बैंकों ने सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी। हज दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने पर कुरानंदाज़ी की जाएगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 25,000 का कोटा मुख्तस।
स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत दरखास्तें डॉलर्स के हमरा बैरून मुल्क से जमा कराना होंगी। हज दरखास्तें दिसंबर 2024 तक करामत शनाख्ती कार्ड पर जमा कराई जा सकती हैं। बुज़दार दौर के सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबे ताहाल अधूरे। वासा के O&M डायरेक्टरेट्स और कंस्ट्रक्शन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज पर मुकम्मल अमल दरामद न किया जा सका। सब्ज़ार, तलत पार्क, अल्लामा इकबाल टाउन और बस्तामी रोड के तामीराती काम नामुकम्मल हैं। बुज़दार दौर के सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबे ताहाल नामुकम्मल हैं। वासा के O&M डायरेक्टोरेट्स और कंस्ट्रक्शन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज पर मुकम्मल अमल दरामद न किया जा सका। सब्ज़ार, तल्लत पार्क, अल्लामा इकबाल टाउन और बस्तामी रोड की तामीराती काम अधूरे। डेवलपमेंट पैकेज की 8 तामीराती स्कीमों का औसतन तामीराती काम 85% हो सका। हुकूमत ने वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए 2 अरब 12 करोड़ 58 लाख रुपए के फंड दिए। वासा ने अल्लामा इकबाल टाउन के रहमान ब्लॉक में सीवरेज वाटर सप्लाई का काम मुकम्मल ना किया। यूनियन काउंसिल 229 में सीवरेज वाटर सप्लाई की स्कीम नामुकम्मल है। यूनियन काउंसिल 229 में वाटर सप्लाई और PCC का काम भी तकमील का मुंतजिर है। MD वासा ने तामीराती कामों में सुस्त रवि बरतने पर अफसरान की सरजनिश की है और मुतालिका अफसरान से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अकबर चौक फ्लाईओवर को रवां हफ्ते खोल दिया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग अज़फर अली नासिर का कमिश्नर मोहम्मद रंधावा के हमरा अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा। वज़ीर हाउसिंग ने मनसूबे के इतराफ़ इजाफी टीमें लगाने और काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबे को रवां हफ्ते खोल दिया जाएगा। मनसूबे के तहत 1.1 किलोमीटर के 2 फ्लाईओवर तामीर किए जाएंगे। मनसूबे की तामीर के दौरान एक दरख्त भी नहीं काटा गया। अकबर चौक, शोक चौक, जिना हॉस्पिटल, मॉल टाउन लिंक रोड, कच्चा जेल रोड, पीकर रोड और मादर मिल्लत समेत 10 मुकामात पर प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाए गए। कॉलेज रोड, पीकर रोड के अतराफ में ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो जाएगा। वज़ीर हाउसिंग ने तमाम यू टर्न्स ट्रैफिक रवानी का भी जायजा लिया। LDO और टीपा ने पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस का मंसूबा अधूरा छोड़ दिया। अल्लाह चौक और वहादत रोड पर पेडेस्ट्रियन पुल के कॉलम तामीर किए गए। फंड न मिलने से मजीद काम को ब्रेक लग गई। शहर में गुज़िश्ता 5 बरस में सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन पुल तामीर हो सका। पंजाब हुकूमत और LDA के अदम तवज्जी का एक और शाखसाना। गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर, पैदल चलने वालों को कोई सहूलत न दी गई। LDA की तरफ से 2 शाहराहों को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया गया। निगरान दौरे इक़्तिदार में नजर पाकिस्तान रोड और मौलाना शौकत अली रोड को सिग्नल फ्री बनाया गया। क्रीम ब्लॉक सिग्नल से पीकर रोड तक तमाम सिग्नल्स को ख़त्म करके यू टर्न बनाए गए। अकबर चौक रीमॉडलिंग मनसूबे में पैदल चलने वालों के लिए सहूलियात देना थी। मनसूबे शुरू हुए मगर अधूरे छोड़ दिए गए। शहर में 5 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस तामीर करने का मनसूबा भी खटाई में पड़ गया। पंजाब हुकूमत ने पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस तामीर करने की जिम्मेदारी टीपा को तफवीज़ की। लिबर्टी चौक, वहादत रोड और अल्लाह चौक पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस तामीर किए जाने थे। 5 पेडेस्ट्रियन पुलों की तामीर के लिए 59 करोड़ 79,13,513 रुपए का तखमीना लगाया गया। लिबर्टी पेडेस्ट्रियन ब्रिज के टेंडर लगाने के बाद काम शुरू न हुआ। अल्लाह चौक और वहादत रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज का काम बंद हो गया। गुज़श्ता 5 बरसों में सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन पुल तामीर हो सका है। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मांगा स्टोर में करोड़ों रुपए की चोरी का मामला। गैस कंपनी के इंतजामिया ने ऑफिसर्स के तबादले के मामले पर मट्टी डाल दी है। चोरी में मुलविस किसी ऑफिसर को सज़ा दी, ना ही रिकवरी की जा सकी। सोई नॉर्दर्न मांगा स्टोर से सामान की चोरी का मामला दबा दिया गया। सोई नॉर्दर्न इंतजामिया ने चोरी में मुलविस ऑफिसर तब्दील कर दिए, किसी ऑफिसर को सज़ा दी, ना ही रिकवरी की। डिप्टी चीफ ऑफिसर स्टोर शहजाद यूसुफ का कस्टमर सर्विसेज नॉर्थ तबादला कर दिया गया। डिप्टी चीफ ऑफिसर स्टोर अदिला मरज़ूक को डिप्टी चीफ BD रिटेल हरबंसपुरा तैनात कर दिया गया। डिप्टी चीफ ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर ईस्ट हसन ताहिर को डिप्टी चीफ ऑफिसर स्टोर तैनात कर दिया गया। लेस्को इंतजामिया ने सार्फिन की सहूलियात को पसे पुश डाल दिया। ऑफिसर मीटिंग में मसरूफ सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। 77,000 से ज़ायद नए कनेक्शन इल्तवा का शिकार। लेस्को में 77,000 से ज्यादा नए कनेक्शंस इल्तवा का शिकार। मीटर मौजूद, ना ही अफसरान और स्टाफ के पास सारिफीन के मसाइल सुनने का वक्त। नए कनेक्शन, खराब मीटर की तब्दीली के लिए सारिफीन खबर। लेस्को फील्ड अफसरान ने सारिफीन की बात सुनना ही छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक लेस्को के कस्टमर सर्विसेज सेंटर से भी स्टाफ गायब। लेस्को का अमला रिकवरी टारगेट पूरा करने में मसरूफ। कस्टमर सर्विसेज अमली तौर पर गैर फाल है। ज़राए का कहना है कि अफसरान 3 बजे से रात 10 बजे तक मीटिंग्स में मसरूफ रहते हैं। लेस्को दादो शुमार के मुताबिक 72,680 घरेलू, 35,008 कमर्शियल, 3,508 कमर्शियल, 312 इंडस्ट्रियल और 364 ज़रई कनेक्शंस इल्तवा का शिकार हैं। खराब मीटर्स की तादाद 50,000 से जायद है। लेस्को में मीटर्स के साथ स्टाफ की भी शदीद कमी है। सारिफीन का कहना है कि मीटर्स और स्टाफ की कमी के साथ अफसरान का रवैया भी सारिफीन के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है।